Now, the NTA will conduct the NEET UG re-examination for 1,563 candidates who were affected by the time loss. The re-exam will be held today from 2 p.m. to 5:20 p.m. Admit cards have already been issued and the result for the NEET re-exam is tentatively scheduled for the 30th of June. Now, the re-examination will take place in 7 centres, 2 in Chandigarh, 1 in each in Meghalaya, Haryana, Gujarat and Chhattisgarh. Remember, earlier the UG medical entrance test was held on the 5th of May for more than 24 lakh candidates, and the result was declared on the 4th of June. 6 candidates in that had emerged as toppers of the NEET UG exam with a score of 720, and 2 had gone up to 718 and 719 marks as well, due to compensatory marks that led to a massive uproar, leading the NTA to withdraw the grace marks that were awarded and conduct a re-examination that will take place today. My colleague Tanushka joins us with more details. Tanushka, now students protesting at Jantar Mantar after the postponement of the NEET PG exams. Take us through their demands. Yes, so it's not just, students present here, but also parents of these students who've gone through the hassle of this, not just the postponement of the NEET post-graduation examination, but also the irregularities found in the NEET undergraduate examination and the alleged paper leak scam. I have a few students with me here, as well as, very troubled parents whose children have scored very good marks. So let us get talking to one of the students here. आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राप्ति रहता है. And how old are you? आई एम 18 right now. And this was your which attempt? Second attempt. Second attempt. So now that these paper leak allegations have come up, and what do you feel then? What are your demands now from the center and from the Ministry of Education? लाइक कि रीनीट ही होना चाहिए, और रीनीट के अलावा आई थिंक और कोई ऑप्शन है भी नहीं. बिकॉज अगर कोई भी देखेगा इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है. और इसका मतलब क्या है? चीटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है, एंड पेपर लीक के तो प्रूफ भी है, अभी भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो अब क्या ही कर सकते हैं. How much did you score and what did you feel about you acquiring a seat? I scored 620 and I thought I would get a pretty good seat, and यही मेरे को उम्मीद था, बट कुछ भी नहीं हुआ. मेरे को कोई सीट भी नहीं मिलेगा, मुझे BDS भी नहीं मिलेगा इतने स्कोर में. Right. So that's what we're hearing right now from a student who's definitely troubled. Let us get talking to a parent here. As you can hear behind me, there are slogan hearings as well going on right now at the protest in Jantar Mantar. नमस्ते मैम, आप हमें अपना नाम बताइए. और मेरा नाम सीमा है और मेरी गुड़िया ने इस साल MBBS का एग्ज़ाम दिया था, उसका दूसरा अटैम्प्ट था और वो 621 मार्क्स लेकर भी आई है, बट उसको अभी भी कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही. और वो आ भी जाती, पर जिस दिन से रिजल्ट आया उसकी तबीयत जो है ख़राब है, वो बाहर निकल ही नहीं रही. टेंशन में लगाओ या कुछ भी लगाओ, क्योंकि वो डिप्रेशन में है एग्ज़ाम का रिजल्ट देख के, क्योंकि उसने जो सोचा था वो उसकी रैंक नहीं आई. उसकी रैंक जो जा रही है 57,000 पे, और उसके अकॉर्डिंग आनी थी उसकी रैंक 13,000 14,000 पे. तो इस चक्कर में, और मैं ये हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं होगा, तो आप हमें ऑप्शन बताइए क्या करें. फिर उन बच्चों को फिर एडमिशन दो आप गवर्नमेंट सीट में. अगर आप रीनीट नहीं करा रहे तो कुछ दूसरा ऑप्शन दे दो, तो हम क्या करें. मैं इनसे यही जानना चाहती हूँ. मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा. मैं डेली देखती हूँ वो यही बात बोल रहे हैं. जो बच्चे जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया उनके साथ अन्याय नहीं है. उन्होंने उतनी ही मेहनत करी है जितनी कि 700 मार्क्स वाला बच्चा करता है. तो उनको देखना चाहिए कि वो भी बच्चे, और ये बच्चे कोई कम नहीं है, 70 से 80 हज़ार बच्चे ये भी वेट कर रहे हैं कि हमें भी सीट मिले. और किसी भी मीडियम फैमिली का बजट नहीं होता कि वो अपना जो है प्राइवेट सीट से MBBS करा ले. तो हम भी उसी मीडियम फैमिली से आते हैं. हमने उसको कोटा पढ़ने के लिए भेजा था. हमने और ज़रूरतों को कम किया कि हाँ पढ़ाई में पैसा लगाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे. तो अब गवर्नमेंट बोलती है बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाएंगे. एक बात मुझे मंत्री जी आप बताएं, कैसे पढ़ाएंगे. ऐसे तो नहीं पढ़ा पाएंगे. जिस तरह आप कर रहे हैं कि नहीं बस 650 वालों का ही एडमिशन हो पाएगा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे. उसमें लड़की भी हैं, लड़कियां भी हैं. तो आपके पास अगर कोई दूसरा रास्ता है तो मैं पूछना चाहूँगी वो रास्ता दें और बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं. और मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान. आप जैसे अभी कह रही हैं कि आपकी बच्ची भी डिप्रेस हालत में है, सो इट्स नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ दैट इज बीइंग अफेक्टेड, बट ऑल्सो फाइनेंशियली आपको क्या प्रॉब्लम्स हुए थे. मतलब आप कह रही थी कि कोटा भेजना पड़ा था. कोटा भेजा उसको पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि, क्योंकि कोटा की जो कोचिंग सेंटर है
ज़्यादा कॉस्टली हैं, वो सबको पता है। और वहाँ रहने का भी 4x4 के कमरे में उसने रह के जो पढ़ाई करी थी कि हाँ मैं एक डॉक्टर बनूंगी, हमारे परिवार से कोई डॉक्टर नहीं है, उसका जो सपना था वो पूरा भी हो जाता, पर नहीं, अभी गवर्नमेंट कुछ उसके लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही, बस रीनीट होगा। अभी उन्होंने सुबोध जी को हटाया, तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ। आप ये सारी कार्रवाई बाद में करते रहिएगा, सीबीआई भी करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल बच्चों का रीनीट कराएं। ये सारी इतनी जरूरतें नहीं है कि आप ये सब अभी करें, पहले आप हमारे बच्चों को एडमिशन के लिए रीनीट टेस्ट की तैयारी करवाएं कि हाँ ये हमें डेट दे दें कि अगर जिन्होंने मेधावी छात्र जो हैं वो दोबारा से भी एग्जाम देंगे ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो फिर पीछे रह जाएंगे, और जिन्होंने खरीदी है सीट उनका भी पता चलेगा, और जिन्होंने मेहनत करी उनका भी पता चलेगा। तो मैं मंत्री जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का रीनीट कराएं। आप सीबीआई या किसी को हटाना है बाद में करते रहिए, हमें बच्चों का बताएं, हम बच्चों का क्या करें। फिलहाल शुक्रिया मैम। हमारे बच्चों की तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकती, मेरी गुड़िया ना, मैं उसको पक्का लेके आती यहाँ पर। Let's talk to another parent here who's really, frustrated definitely with the situation that is here. Ma'am, what is your name and your child? What attempt was this of your child? I am Dr. Monica. I am myself MD medicine. My son's it was second attempt. He's just a little bit. He took 1 year drop to prepare for NEET exam, and he scored 653 marks, which by any standards, if you ask anybody and if you compare any previous year's counseling statistics, is a pretty good score. And one day, and just at this year at 653, he's not getting any government medical college. Now who is responsible for this? If paper leak is not responsible, NTA gets a clean sheet, everybody is clean, then who is responsible for my son not getting what he deserves? The government is saying, first of all, it took so many days of protest for the government to finally identify that yes, something is wrong. There were so many blaring evidences that Bihar police is saying the NTA is not cooperating, paper leak हो गया, टेलीग्राम पे पेपर आ गया, गोधरा में एविडेंसेस मिल गए, झारखंड में मिल गए। अभी तो प्रॉपर इंक्वायरी हुई नहीं है तो ये एविडेंसेस आ रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन करो, जब प्रॉपर इंक्वायरी होगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और फॉर दैट मैटर हम सिर्फ पेपर लीक ही पे क्यों बोल रहे हैं? क्या पता अंदर खाते इन्होंने OMR में क्या क्या मैनिपुलेशंस की हो, जो NTS किस केस बेसिस पे ये बोल रहा है कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले। हाउ डू वी ट्रस्ट दैट? Thank you, ma'am. Yes, thank you for your opinion here. So there are some really strong views that parents and students are coming up with respect to the NEET examinations, the undergraduate examinations.